Hello friends, welcome to my channel Hasti Detroja. In our previous video, we are discussing about what is vitamins and what are the types of vitamins. Now, in this video, we are discussing about first type, fat soluble vitamins. There are two types of vitamins are there, fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Now, in this video, we are discussing about fat soluble vitamins. Vitamin A. There are four vitamins are fat soluble vitamins: vitamin A, vitamin E, vitamin D and vitamin K. So first we are discussing about vitamin A. What is vitamin A? Vitamin A is an important vitamin that plays a major role in our vision. It helps in the production of certain pigments that are important for the proper functionings of the retina. Vitamin A is related to our vision of eyes. If your vision of your eyes is very clear, then you can say that I am taking a good source of vitamin A. अगर आप vitamin A अच्छी तरीके से ले रहे हैं तो आपकी जो आइज है वो बहुत ही अच्छी रहेंगी. तो ये जो विटामिन ए है वो आपकी आइज से रिलेटेड है, उसके विजन से रिलेटेड है. और ये जो है वो सर्टेन पिगमेंट्स उसमें जो होते हैं कि जो रेटिना जो है उसका कार्य करने में मदद होते हैं, वो जो है वो विटामिन ए में प्रेजेंट होते हैं. सो बच्चों को बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज आइज विजन. The sources of vitamin A. These are some sources of vitamin A. Dark and yellow colored vegetables are rich sources of vitamin A. Yellow colored vegetables like carrots, pumpkin and sweet potatoes are good source of vitamin A. And green and ripe yellow colored fruits also good source of vitamin A. Green fruits like watermelon and ripe yellow colored fruits like banana, mangoes are the good source of vitamin A. And another source is dairy products like cheese, milk and butter. Milk you have to take in your daily life because milk is a good source of all types of vitamins. मिल्क में से हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में vitamins मिलते हैं, इसलिए हम सभी को मिल्क जो है वो डेली पीना चाहिए. Now green leafy vegetables are also a good source of vitamins. All green leafy vegetables have a good sources of vitamin A. Another source is nuts, beet greens, liver, etc. What is vitamin A deficiency? Vitamin A deficiency is the major cause of several diseases, infections and preventable blindness in children. बच्चों में जो ब्लाइंडनेस कभी कभी आ जाती है, उसकी जो है साइट जो है विजन है उसका कम हो जाता है, ये सभी डेफिशिएंसी जो है वो विटामिन ए जो है उसकी वजह से हो जाती है. इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन प्रेग्नेंट वुमन. प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो विटामिन ए अच्छी तरीके से अगर नहीं ले पा रही है तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम. ये जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी अगर आप अच्छी मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इम्यून सिस्टम जो है वो आपकी वीक हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट रिजल्ट्स इन द डेथ फ्रॉम मलेरिया, डायरिया एंड मेल्सिस. ये जो सभी जो है डिजीजेस है वो इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाने की वजह से हो जाता है. विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीजेस, कौन कौन से डिजीज जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं. फर्स्ट वन इज ड्राई स्किन. विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिपेयरिंग स्किन सेल्स. Eczema and other skin problems are caused due to vitamin A deficiency that leads to dry, itchy skin. ड्राइनेस और इचनेस जो आपकी स्किन में महसूस होते हैं वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं. ड्राई आइज. Eye problems are related to vitamin A deficiency.
The inability to produce tears is the first sign of vitamin A deficiency. कभी कभी आपकी जो आंखों है उसमें से टीयर्स निकलना बंद हो जाता है और आइज जो है एवरीडे आपकी बहुत ही ड्राई रहती है, उसकी वजह से आपको जो है देखने में दिक्कत आ सकती है, आंखों जो है उसमें ईचिंग हो सकती है। तो ये सभी जो है ड्राई आइज की प्रॉब्लम जो है वे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है। Another one disease is night blindness. Mainly you can see that actual vitamin A deficiency result in night blindness. विटामिन ए की बहुत ही जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही विटामिन ए की कमी की वजह से मोस्टली नाइट ब्लाइंडनेस ही हो जाती है। विटामिन ए सप्लीमेंट्स हैव हेल्प्ड वुमन टू एडेप्ट टू डार्कनेस बाय 50% विद इन 6 वीक्स। ये जो विटामिन ए अगर आप लेते हैं तो विज़न आपका जो है वह क्लियर हो जाता है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं नॉर्मल विज़न जो है वह कैसा होता है और नाइट ब्लाइंडनेस में आपकी जो साइट है बहुत ही कम आप देख सकते हैं और आप कलर जो है अच्छी तरीके से नहीं देख पा सकते हैं और लाइट है वो आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखेगी। तो ये जो है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। अनदर डिजीज इज इनफर्टिलिटी। Vitamin A deficiency result in infertility in both men and women. It is also beneficial for the proper development of babies. It also acts as an antioxidant that is required by the infertile men due to oxidative stress in their bodies. आप जो अगर विटामिन ए नहीं ले रहे हैं तो मैन और वुमन दोनों में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। Another disease is delayed growth. Vitamin A is beneficial for the proper growth and development of the body. Deficiency of vitamin A results in stunt growth in children. बच्चे जो है बहुत ही छोटे रह जाते हैं बिकॉज उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो विटामिन ए की वजह से होता है, जो उसकी कमी की वजह से नहीं हो पाता है। तो बच्चे जो है उसकी हाइट कम रह जाती है। Infections in throat and chest. Throat and chest infections are also the result of vitamin A deficiency. People who lack vitamin A more prone to throat and chest infections. However, the supplements of vitamin A in children increase the risk of respiratory infections. आप अगर विटामिन ए अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं तो आपको थ्रोट और चेस्ट रिलेटेड यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वे आ सकते हैं। Now, vitamin D. What is vitamin D? Vitamin D is a very important nutrient that is responsible for strong bones and teeth. Usually, exposure to the sun triggers the production of vitamin D in the body. विटामिन डी जो है प्रोडक्शन उसका जो होता है, सनलाइट आप अगर लेते हैं दिन में सुबह के 8 बजे से पहले जो आपको सनलाइट जो मिलती है उसमें से हमारी बॉडी ही विटामिन डी प्रोड्यूस कर देती है। सनलाइट में से वो विटामिन डी हमें मिलता है। ये जो है वो इम्पोर्टेंट रोल बोन्स और टीथ जो है उसमें उसका इम्पोर्टेंट रोल देखा जा सकता है। द सोर्सेस ऑफ विटामिन डी जो है मेनली हमें सनलाइट में से मिलता है और उसके सोर्सेस जो है बहुत ही कम होते हैं बिकॉज सनलाइट जो है उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जा सकता है, उसके सोर्सेस जो है बहुत ही कम है। लाइक रेड मीट, एग्स, फिश एंड एग yolks are the good source of vitamin D. Fatty fish are also a good source of vitamin D. What is vitamin D deficiency? Vitamin D deficiency diseases arises when the body does not get enough of this vitamin. This could either be due to lack of vitamin in the diet, not getting enough sunlight, and even having a dark skin. This is because high level of melanin in the skin reduce the ability to synthesize vitamin D. विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वे मेनली अगर आप सनलाइट अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं तो भी हो सकती है और आपके डाइट में विटामिन डी जो है वो इनफ आप उसको बॉडी को जितना विटामिन डी चाहिए वो आप सनलाइट भी नहीं ले रहे हैं, ऐसे फूड भी नहीं ले रहे हैं जो विटामिन डी के सोर्सेस है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है
और कभी कभी जो है आपकी डार्क स्किन है उसकी वजह से भी हो सकती है, बिकॉज ये जो मेलानिन है, मेलानिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। मेलानिन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आपकी जो स्किन है वह डार्क होती है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन कम है, यानी कि जो लोग बहुत ही गोरे होते हैं उसमें मेलानिन बहुत कम पाया जाता है, और मेलानिन जो है हमारी स्किन के अंदर जो विटामिन डी है उसको सिंथेसाइज करने की एबिलिटी जो है वे रखता है। मेलानिन इन द स्किन रिड्यूस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज विटामिन डी। ज़्यादा मात्रा में अगर मेलानिन हमारी जो है स्किन में आ जाता है, अगर आप बहुत ही डार्क स्किन आपकी होती है, तो जब आप सनलाइट लेते हैं तो उसका जो स्किन जो है वो रिड्यूस कर देता है, मेलानिन जो है वह रिड्यूस कर देता है, और विटामिन डी जो है उसका सिंथेसाइज जो है वह नहीं हो पाता है। यानी कि डार्क स्किन की वजह से विटामिन डी जो है बहुत ही हम कम मात्रा में ले सकते हैं, बिकॉज उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है। डार्क स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है, अगर गोरे हैं तो उसमें मेलानिन कम होता है। अगर मेलानिन ज़्यादा होता है तो विटामिन डी का सिंथेसाइज होना बहुत ही कम हो जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीजेस, these are the diseases caused by vitamin D deficiency. Asthma. You can see in this image that in normal lungs, normal amount of mucus is present, and in asthmatic lung, the excess muscles and swollen lining is seen in asthmatic lungs. In osteomalacia, we can also say that rickets is also happen due to the lack of vitamin D. Cardiovascular diseases like heart disease is also due to lack of vitamin D. Now, vitamin E. What is vitamin E? Vitamin E is a nutrient that is important to vision, reproduction, and the health of your blood, brain and skin. Vitamin D is related to your vision. विजन के साथ रिलेटेड है, ब्लड, ब्रेन एंड स्किन के साथ ये विटामिन ई जो है वे रिलेटेड है। Vitamin E also has antioxidant properties. Antioxidants are substances that might protect your cell against the effect of free radicals. Molecules reduced when your body breaks down food or is exposed to tobacco smoke and radiation. विटामिन ई जो है उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंसेस, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ है दैट माइट प्रोटेक्ट योर सेल अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में जनरेट होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। फ्री रेडिकल यानी कि जब आप बॉडी में कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। अगर टोबैको स्मोक और रेडिएशन कोई भी आपकी बॉडी में आता है तो ये जो फ्री रेडिकल है वो आपको हेल्प करता है। फ्री रेडिकल्स माइट प्ले अ रोल इन हार्ट डिजीज, कैंसर एंड अदर डिजीजेस। इफ यू टेक विटामिन ई for its antioxidant properties, keep in mind that the supplement might not offer the same benefits as naturally occurring antioxidants in food. अगर आप जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए ही विटामिन ए ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है, बिकॉज नेचुरली अकरिंग जो नेचुरली फूड में से उसके जो सोर्सेज है उसमें से अगर आप नेचुरल सोर्स में से विटामिन ए ले रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये नेचुरली वर्क नहीं करता है। द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, दिस आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई लाइक आलमंड्स, पीनट्स एंड पीनट बटर, बीट ग्रीन्स, कोलाड ग्रीन्स, स्पिंच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो भी विटामिन ई के सोर्सेज है। एंड रेड बेल पेपर, एस्परजिलस, एवोकाडो, sunflower oil, soybean oil and safflower oil like mango, pumpkin and red germ oil. These are the sources of vitamin E. Now, what is vitamin E deficiency?
Because of vitamin E is found in a variety of foods and supplements, a deficiency in US is rare. विटामिन ई जो है बहुत ही ज़्यादा जगह पे यानी कि हर जगह पे पाए जाते हैं, हर फूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। People who have digestive disorders or do not absorb fat properly can develop a vitamin E deficiency. अगर कोई भी पीपल है जिसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से, अगर पेट संबंधी कोई भी समस्या होती है, डिसऑर्डर है, आपको कोई पचने में दिक्कत होती है, तो क्या होता है, फैट जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसकी वजह से विटामिन ई की डेफिशिएंसी जनरेट होती है, लाइक पैनक्रियाटिस, साइस्टिक फाइब्रोसिस एंड सेलिएक डिजीजेस। ये सभी जो डिजीज है उसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन ई डेफिशिएंसी डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज, प्रोस्टेट कैंसर। ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये मोस्टली मेन में पाया जाता है। ब्लैडर कैंसर एंड अल्जाइमर्स डिजीजेस। यू कैन सी दैट इन दिस इमेज हेल्दी ब्रेन साइज जो होती है वह कितनी होती है, अगर अल्जाइमर डिजीज हो गया है तो उसकी ब्रेन साइज कैसी हो जाती है। यहाँ पे उसकी पास में जो इमेज है उसमें भी आप देख सकते हैं कि हेल्दी न्यूरॉन जो होते हैं वे कैसे होते हैं, एंड ड्राइंग न्यूरॉन विद टेंचल्स। अगर अल्जाइमर हो जाता है तो उसके न्यूरॉन जो है वे कैसे हो जाते हैं आप देख सकते हैं। तो ये जो है विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। आई जो होती है हेल्दी हाई कैसी होती है, अगर एएमडी हो गया है, एएमडी यानी एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन हो गया है तो उसका डैमेज मोक्यूला जो होता है वो कैसा हो जाता है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट इज विटामिन के? What is vitamin K? Vitamin K plays a key role in helping the blood clot, preventing excessive bleeding. Unlike many other vitamins, vitamin K is not typically used as a dietary supplement. Vitamin K जो है हमें कहाँ पे मददरूप होता है, vitamin K ब्लड को कोटिंग करने में मदद होता है। और एक्सेसिव ब्लड है, ज़्यादा ब्लड अगर कभी निकल जाता है तो ब्लड कोटिंग करने में हमें vitamin K जो है वह हेल्प करता है। अनलाइक मैनी अदर वाइटामिन, अदर वाइटामिन है उसकी जैसे डाइटरी सप्लीमेंट फूड जो हम लेते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसमें से विटामिन के बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। द सोर्सेस ऑफ विटामिन के लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन एंड कैनोला ऑयल। व्हाट इज विटामिन के डेफिशिएंसी? Vitamin K deficiency in adults is rare, but may occur in people taking medications that block vitamin K metabolism, such as antibiotics, or in those with a condition that causes malabsorption of foods and nutrition. विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है एडल्ट्स में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, बट वो जो लोग हैं जो मेडिकेशंस ले रहे हैं मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड, उसके जो प्रॉब्लम्स है, एंटीबायोटिक्स कोई भी ले रहे हैं तो उसमें विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। A deficiency is also possible in newborn infants because vitamin K does not cross the placenta and breast milk contains a low amount. अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें विटामिन के डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बिकॉज जो बेबी जो है वे मिल्क पीता है, उसमें मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में लो अमाउंट ऑफ विटामिन के होता है। इसकी वजह से द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स एट बर्थ इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन इन्फेक्ट्स इफ दे आर नॉट गिवन विटामिन के सप्लीमेंट। बेबी जो न्यूबॉर्न होता है उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग जो हो जाता है उसमें, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रोटीन उसमें नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो विटामिन के सप्लीमेंट्स उसको देने चाहिए। विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीजेस, these are diseases caused by the deficiency of vitamin K like osteoporosis. In this figure you can see normal bone and you can see bone with osteoporosis. Bleeding is also caused by the deficiency of vitamin K. Mainly nasal bleeding occurs in children.
एंड प्रोथ्रोम्बिन लेवल्स आर रिड्यूस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के जो है वो आपकी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में है, तो अगर आपको कहीं पर भी चोट लगती है तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं पाता है। अगर ब्लीडिंग को आपको रोकना है तो प्रोथ्रोम्बिन वहाँ पे होना चाहिए, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाती है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो सो दीज आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। Thanks for watching my video. In our next video, we are discussing about water-soluble vitamins. So please like, share and subscribe my channel for more videos. Hasti Detroja. Thanks for watching.